Hello everyone, how is it going on? Have you ever been confused about when to use present perfect, past perfect, future perfect? Where to use all these things? Where to use all these tense? So don't worry. In today's lesson, we will just dive into what these all rules of present perfect, past perfect, and future perfect in a very simplest way. But I just want each one of you, this is my request to everyone, to watch this video till end to comprehend this lesson in a better way. So what you are waiting for? Are you excited? Let's get started. Let's begin this first, present perfect tense. Where to use it? Definition. The present perfect tense is used for actions that happened at some point in the past but are still important now. Present tense का हम यूज उस समय करते हैं जब कुछ समय पहले पास्ट में हुआ हो, लेकिन अभी भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. Now see the format of this. The format of this tense is subject plus have plus has plus third form then object. With plural we will take have, with singular we will take has. Let's see the example. I have kept up my responsibility. मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभा दिया है. तो यहाँ पे जो keep की हमने फॉर्म ली है kept, this is our third form. Always remember that in this tense we will take third form. Now see the negative sentence. Negative में हम लोग क्या करते हैं? Subject, have not, has not, third form, then object. Now see the example. He has not invited couple of his friends for upcoming celebration. उसने अपने couple of friends को invite नहीं किया है आने वाले celebration के लिए. So this is what our negative sentence. Now just talk about first interrogative. What is the format of this? In first interrogative, we will take have, has, subject, third form, object. That's it. Now see the example. Example is, has she returned your money? क्या उसने आपका पैसा लौटा दिया है? So now you see that she is singular. That is why we have taken what? Has in the beginning. And return is the third form of return. This is what our first interrogative. Now talk about our second interrogative. In second interrogative, what we do, we take help. Second, I mean to say question word. Question word बोले तो, like if you just talk about W family, like where, what, when, whose, etc. Let's see the example. Who has broken your trust? Like किसने आपका ट्रस्ट को तोड़ा है, किसने आपके विश्वास को तोड़ा है. So now who, देखिए हमारे इसमें W family हो गया, and break के थर्ड फॉर्म हो गया हमारा broken. So this is what? Who has broken your trust. And we also use this present perfect tense, what, for life experiences, ongoing actions, and just whatever has happened in the moment. So this was the complete your present perfect tense. Now just follow the rules and use this tense in your day-to-day conversation. Now move on, past perfect tense, where to use it. Let's see the definition. This tense is used when we have two past actions. इस tense में क्या होते हैं, हमारे two past actions होते हैं when we want to show which one happened first. And it is very important to know for us, ये बहुत जरूरी होता है जानने के लिए कि कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ है. You have to understand two things here, that in this tense there are two past actions. जो इस tense में हमेशा दोनों हमारे दो past actions होते हैं, और ये हमको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ है. तो past perfect जो है थोड़ा आई विल नॉट से मच ट्रिकी, बट थोड़ा सा ट्रिकी है ये. तो इसमें थोड़ा आपको चीज समझनी है कि इस टेंस में हमारे दो एक्शंस आएंगे. अब कौन सा एक्शन पहले हुआ है, लेट डिस्कस दिस. नाउ फॉर्मेट इसका कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. नाउ सी द एग्जांपल. When I arrived at the station, the train had already left. When I arrived at the station, the train had already left. Now, if I just talk about train left first, then I arrived. So there were two action in this sentence. There were two action in this sentence. So you have to understand this कि past perfect एक ऐसा tense है जिसमें हमारे two actions होते हैं. Let's see another example. She had finished her homework before her mom came home. She had finished her homework before her mom came home. यानी कि अब देखिए इसमें क्या है कि उसने अपना काम कर लिया था उसकी मम्मा के आने से पहले. So now
यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इस टेंस में हमारा क्या होगा, टू एक्शंस आते हैं जो कि हमें ध्यान रखना है इस चीज का। इंपॉर्टेंट टिप क्या है इस टेंस की, दैट इफ देयर इज ओनली वन एक्शन इन द पास्ट यूज सिंपल पास्ट नॉट पास्ट परफेक्ट। अगर किसी भी कैसे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा एक ही एक्शन आएगा और पास्ट परफेक्ट में टू एक्शंस आएंगे। दिस इज द वन थिंग दैट यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा टू एक्शन आएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा आपके क्या आने हैं, जस्ट वन एक्शन आएगा। सो हियर यू नो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड दिस योर पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा के आपका इसका नेगेटिव लग सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम पहले वाले देख सकते हैं, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट ऑलरेडी लेफ्ट। अगर आप इसको अब ऐसे बनाएंगे तो आपको इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा, ये तो नॉट लगा के आपका बन जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, this tense is used when we talk about something that will be completed before a specific time in the future। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन कि फ्यूचर टेंस का हम यूज करेंगे जब हम बात करते हैं समथिंग, कुछ ऐसे एक्शन की that will be completed, हो जाएगा before a specific time in the future, आने वाले फ्यूचर में। Let's see the format of this। Subject, will have, shall have, थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको फॉर्मेट इसलिए दिया है ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। विल हैव सिंगुलर के साथ, शैल हैव जो आपका आई और वी के साथ आना है, बाकी सिंगुलर प्लूरल के साथ आप विल हैव का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। बाय टुमारो आई विल हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। मीन सब्जेक्ट इज सेइंग दैट कल तक मेरा असाइनमेंट पूरा हो जाएगा, कल तक मेरा असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, अगर जैसे हमें नेगेटिव बनाना है, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द बुक बिफोर द वीकेंड। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द बुक बिफोर द वीकेंड। अब आपको चीज यहाँ पे एक ये रूल भी देखना है कि मैंने इसमें बिफोर का यूज किया है, वो क्यों किया है, क्योंकि इस टेंस में भी हमारे टू एक्शंस का यूज होता है। अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए इस चीज का क्या होता है, शी विल हैव फिनिश्ड द बुक बिफोर द वीकेंड। और जो दोनों एक्शंस है हमारे अगर फ्यूचर टेंस में आते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो सेकंड सेंटेंस होगा हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे आपको इस टेंस में थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें हमारा सम टाइम वी हैव टू स्पीक लाइक दैट, शी विल हैव फिनिश्ड द बुक बिफोर द वीकेंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप कहाँ इस सेंटेंस को बोलना चाह रहे हैं, इस तरीके से हमारा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। की पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है की टिप, दैट वी ऑफन यूज फ्यूचर परफेक्ट विद टाइम एक्सप्रेशन लाइक बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द टाइम। की टिप इसकी ये रहेगी आपकी कि इसमें हम जो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं वो हम एक्सप्रेशन का यूज कर देते हैं इसमें, लाइक बाय नेक्स्ट ईयर और बाय द टाइम। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा एक कंप्लीट लेसन था। इन जस्ट अ फ्यू मिनट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कंप्लीटेड यू नो व्हाट these all three tenses of perfect tense. I hope that you understood it well. So now it's your turn. Comment below with your own perfect tense sentences and I will check them for you. Like, share and subscribe for more awesome lesson. See you in the next video. Thanks for watching.